اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون. کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. اور یہ دعا بھی کرنا چاہوں گی کہ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، جس نے ابھی تک نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ اس پہ، مجھ پہ، ہم سب پہ اپنا خاص کرم کرے، خاص کر کے فلسطینیوں پہ. آمین. اور یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ ویڈیو جب آپ اوپن کریں گے اور دیکھیں گے، صرف دیکھ کے ایسے ہی چلے نہ جائیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب نیو یوٹیوبرز کے لیے. اتنا دیکھتی ہوں، اتنا حیران ہوتی ہوں کہ لوگ محنت بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی ویڈیو نہیں بناتے، ایڈیٹنگ نہیں کرتے، بس کوئی بھی چیز پکڑ کے اپلوڈ کر دیتی ہیں. اور ان کی ویڈیو اتنی وائرلز ہو جاتی ہیں. وائرل کرتا کون ہے؟ آپ لوگ کرتے ہیں. ان کو سبسکرائب کر کے، کمنٹ کر کے، لائک کر کے. اور ہم جو اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشکل سے کانٹینٹ ڈھونڈتے ہیں، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گرمی سردی میں باہر جا کے کیمرہ پکڑ کے بچوں کو دیکھیں، کیمرہ دیکھیں یا ویو دیکھیں کہ کیا کیپچر کرنا ہے. اور اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں، وائس اوور کرنے کے بعد جب گلا خشک ہو جاتا ہے پانی پی پی کے اس کو سب کچھ بیٹھاتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے نہیں، اور اگر دیکھتے بھی ہیں تو سبسکرائب نہیں کرتے. تو اس لیے امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے کہ ہم نیو یوٹیوبرز کو کائنڈلی اگر تو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ویسے جو آپ کو کرنا چاہیے تو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں. میں نے جیسے بتایا ہے، میں سسرال آئی ہوئی ہوں، تو ہمارا سچ پروگرام نہیں تھا، بس بنتے بنتے عجیب سا کچھ ہوتا گیا. اللہ تعالیٰ کو شاید یہ منظور تھا، اور آگے بھی جو کچھ ہوا، کیونکہ میری دیورانی کے ساتھ بچائی نے جو اتنی محنت کی، کیا 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 میں بتاتی ہوں. اس نے کیا بنایا، میں نے کیا بنایا، اور یہ پروگرام کس طرح سے بنا میں ڈیٹیل میں بتاتی ہوں. اور اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا، او مائی گاڈ، مجھے بڑا دکھ آیا. میرا ڈر جو تھا، ایک فوبیا تھا، وہ اور بڑھ گیا. اس کا کیا ریزن بنا، کیا چکر تھا، میں آپ کو چل کے بتاتی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ چلتے ہیں. یہ ایکچولی میرا پروگرام تھا. میری جو نند کے بچے ہیں ماشاء اللہ سے، وہ میرے بچوں کے ایج کے آس پاس ہیں، تو ان کے بیسٹ کزنس ہیں. جب ہم سسرال میں جاتے ہیں تو ان کو، جیسے ان کے لیے بھی اور میرے بچوں کے لیے بھی عید ہو جاتی ہے. میں نے سوچا تھا کہ میں جاؤں گی ان لوگوں کو نا کسی ٹرمپلنگ والے پارک میں لے کے جاؤں گی، کسی بھی جیسا پارک میں لے کے جاؤں گی. لیکن ٹرمپلنگ والے پارک میں نا میرے دماغ میں نا ایک، میں نے ریلز دیکھی تھی تو میرے دماغ میں بیٹھ گیا تھا کہ جب جمپیں لگاتے ہیں تو بچوں کے دماغ میں دس اینڈ دیٹ پتہ نہیں کیا جو کرنا. تو مجھے نا ڈر بیٹھ رہا تھا. میں نے اپنے نند سے ایسے ڈسکس کیا تھا، میں نے لے کے جانا ہے، لیکن میں کیا کروں. کہتے تو نہیں لے کے جانا ہے، تم لے جا، کوئی بھی ایسی بات نہیں. لیکن میں نے نا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میرا جو سسرال ہے وہ جرمن کے بارڈر پہ ہے. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جرمن پہ بارڈر پہ ایک پارک ہے جس میں ہم آج سے 4-5 سال پہلے گئے تھے، مجھے یاد نہیں ہے، کافی سال پہلے گئے تھے. تو وہ کہتے بہت زیادہ نا انہینس ہو گیا، بہت اچھا انہوں نے بنا دیا، تو بڑا بھی بہت زیادہ کر دیا، تو وہ بہت اچھا، ہم ادھر چلتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بس یہ ہے کہ بچوں کے کہیں باہر لے کے چلتی ہیں تو وہاں پہ چلے جائیں گے. اچھا، اب پارک وہ ڈیسائیڈ ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم نا ایسے بات، میں اپنی دیورانی کے ساتھ بات کر رہی تھی، تو مجھے کہتی کہ نا میرا بڑا دل چاہ رہا ہے، کیونکہ میں نے تو پیرس میں اس گھر میں نئی شفٹنگ کی ہے، لیکن میری جو ساس ہے، میرے ان لاز، ان لوگوں نے بھی ماشاء اللہ سے اپنے گھر میں نئی شفٹنگ کی ہے. وہ بھی آہستہ آہستہ گھر بنا رہے ہیں. میں بھی آہستہ آہستہ لگی ہوئی ہوں ان سب چکروں پہ، کیونکہ بچوں کے ساتھ، روٹین کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ ہیلپر نہیں ہوتی، اور آیا گیا ہو گیا، خوشی غمی ہوگی، کچھ بھی اس طرح سے، تو آہستہ آہستہ کام چلتا ہے نا. تو وہ بھی کر رہے ہیں. تو ہم ایسے، وہ اس کی بالکنیاں ماشاء اللہ سے بہت بڑی، بہت زیادہ خوبصورت ہے. جیسے گھر سیٹ ہو جائے گا میں ضرور آپ کو وزٹ کراؤں گی. بہت پیارا گھر ہے ماشاء اللہ سے. تو وہ کہتے ہیں جیسے میری بالکنی سیٹ ہوگی، میری بڑی خواہش ہے کہ ہم سب لڑکیاں مل کے وہاں پہ کوئی نا پکنک کریں نا، ایک پیارے سے نا، پتہ نہیں گیدرنگ کریں، ون ڈش پارٹی کریں، پتہ نہیں اس کے دماغ میں ایسے کچھ چیز تھی. اچھا، تو اس کے بارے میں تو میں بتاتی ہوں، لیکن دیکھیں میں نے کتنی محنت سے چاکلیٹ کوکی بنائی تھی اور سارے جل گئے. اتنا وہ یہ بمب والا اوون تھا، میں نے رکھے، اور میں 10 سے 15 منٹ تک اس کو رکھنا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے میں 10 سے 12 منٹ کے جب جا کے جب دیکھا تو وہ پتہ نہیں کیا، شاید بہت فل ہو گیا تھا، اللہ جانے کی ہوا. میرے پورے کی پورے کوکی جل گئے. مجھے اتنا دکھ ہوا، میرا دل نہ کرے اس کو دوبارہ دیکھنے کا بھی. اور جلنے کی جو بو پورے گھر میں پھیل گئی تھی، بہت زیادہ نا اس کی نا وہ جو تھی نا پورے گھر میں ایسی جم گئی تھی. لیکن مجھے بہت دکھ ہوا تھا اس کوکی کے ساتھ، کیونکہ ہم بڑا پیارا سا ایک جار تھا، تو میں نے سوچا تھا اس میں ڈالیں گے. لیکن اس کے بعد میں نے نا، اب مجھے سمجھ نہ آیا کہ بس جار میں کیا ڈالوں. پھر میں نے بھی انہیں ضائع نہیں کیا ہے، چپس پڑی ہوئی تھی، میں نے آگے آپ کو نظر آ جائے گا، میں نے اس کے اندر چپس ڈالی تھی. اوکے، یہ بیچاری بن کباب بنا رہی ہے. اتنی محنت سے اس نے شامی کباب بنائے، بہت ہی مزے کے بنائے تھے. یس، چکن کے تھے. اور میں نے یہ پاکستان میں شاید کبھی کھایا ہوگا بچپن میں تو، لیکن یہ بن کباب جب میں نے کھایا مجھے اتنے مزے کا لگا کہ او مائی گاڈ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کس قدر مزے کا تھا. ہم نے پوری تیاری کر لی، پورا، یہ دیکھیں چپس نظر آ رہی ہے، نہیں میں نے اس بار میں نا کوکی ڈالنے تھے. ہم ساری تیاری کر کے پکڑ کے میری نند اپنے گھر سے وہاں سے نکلی تھی، اور ہم یہاں پہ نا نکل گئے تھے. اور میں اسٹوری سنا رہی تھی بالکنی کی، تو وہ کہہ رہی تھی میری نند کہ میں نا دل چاہ رہا کہ میں بالکنی میں نا لڑکیوں کی نا پارٹی کرتی ہیں.
लेकिन वो कहती मैं कब से ये ऐसा सोच रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी सब इकट्ठे हुए हैं, अभी ऐसे कोई पिकनिक कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम जा तो रहे हैं तो हम ऐसे पिकनिक कर लेते हैं, पिकनिक वाला कुछ कर लेते हैं। तो मेरी नंद से बना के लेकर आई थी जो चीज़ें, तो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और मेरी देवरानी बेचारी ने, उसने ना रैप बनाए, उसने बन कबाब बनाए, और एक और चीज़ थी बेचारी मेहनत वाला, उसने बड़ा काम किया। मैंने पैनकेक बनाए थे और कुकी बनाए थे जो कि ख़राब हो गए। और मैंने क्या बनाया था, और ये केक हमने ऑर्डर दिया हुआ था। और पता नहीं क्या था, जैसे नज़र आ जाएगा मैं आपको बताती रहूँगी क्या क्या था। ओके, तो ये जब सब कुछ किया तो हम इस पार्क में आ गए। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे इस केक को देख के, और बहुत हैपनिंग सब कुछ चल रहा था माशाअल्लाह से। लेकिन जो इंसिडेंट होता है ना वो बता के नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मैं कहती हूँ कि ना थोड़ी सी माली नुकसान अल्लाह ना करे किसी का हो, लेकिन अगर हो जाए जानी नुकसान ना हो। और जानी नुकसान से भी बहुत बेहतर है कि छोटा सा, जैसे कहते हैं ना आपका तिनका भी कुछ चुभता है तो उस पर भी आपकी कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेचारी को हुआ तो बहुत सवेयर था कि लाइक पूरा पार्क देख रहा था, वो ऑलमोस्ट पूरा पार्क देख रहा था। उस बेचारी की चीखें निकल रही थी, और वो बड़ी हिम्मत वाली है, जो कि मुझसे छोटी है, मेरे से तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है उसमें माशाल्लाह से। और पता नहीं क्या हुआ, हम इधर जब बैठे तो जब चीज़ें वगैरह सब लगा रही हैं, सब कुछ बहुत हैपनिंग चल रहा था। इतनी शदीद भूख लगी हुई थी, आपने नोट किया होगा मेरी हर वीडियो में ये वर्ड ज़रूर आता है कि भूख लगी हुई थी। एक तो मैं भूख की बहुत कच्ची हूँ, ये अलग बात है, हमने सिर्फ नाश्ता किया हुआ था, और ये सब तैयारी करते करते, बच्चों को तैयार करते, चीज़ें इकट्ठी करते करते, और एंड पे हम चादर भूल गए। अब देखो कितनी रंग बिरंगी से चादर डाली हुई है। पिकनिक हमारी जो चादर थी, बेचारी मेरी आंटी कहती जा रही थी निकाल लो निकाल लो। तो हमने ना अच्छा निकालते हैं, अच्छा निकालते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें पैक कर रहे थे और देख सुन रहे थे, तो चादर निकालना भूल गए। तो फिर ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में ये पड़ी हुई थी ये चादर, तो हमने इसी को बिछा लिया। चलो शुक्र है कुछ तो हमारे पास नीचे बिछाने के लिए चीज़ थी। ओके खैर, मेरी नन जो लेकर आई थी वो बना के लेकर आई थी गत्ता, पम का, आलू की कुछ चीज़ होती है ओवन में रखते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको। ओके, ये ना झींगे की स्पैगेटी बना के लेकर आई थी जो कि बहुत मज़े की थी। ये चांपे थी, ओ माय गॉड इंतहाई मज़े की थी। मैंने तो चांपे को सबसे पहले ना टूट के पड़ी थी। और फ्राइड राइस वगैरह मैंने घर में बनाया हुआ है, तो मैं ना क्योंकि अपनी फैमिली के लिए वो छोड़ के आई थी, तो कहते मैं सोचा मैं थोड़े से ले जाती हूँ। क्योंकि मेरी जो ये नंद है माशाअल्लाह से, अल्लाह ताला ने उसके हाथ में पता नहीं क्या जादू रखा हुआ है। शायद वो अपनी माँ की वजह से है उनका, क्योंकि मेरी सास के हाथ में बहुत जायका है। शायद माँ से उसके पास ये हाथ में इतने जादूगरी आई है कि वो जो भी चीज़ बनाती है, बकवास सी चीज़ भी बनाती है, हम सब लोग तरसते हैं कि आय अल्लाह उसके घर से कोई चीज़ आ जाए, हम वो खा लें ना कुछ कर लें। बहुत मज़े के थे ये ना स्पैगेटी झींगे वाली जो ना चांपे, तो बहुत ही मज़े की थी। ओके, हमें ना ये तकरीबन इस टाइम बज चुके थे 5 साढ़े 5, या मुझे लगता है कि 6 बज चुके थे, 5 और 6 के बीच का टाइम था। और सुबह का नाश्ता किया हुआ था 10-11 बजे के करीब, बच्चों को थोड़ा बहुत आसरा उसरा करा दिया था। और हम जो सब कुछ मैंने सेट किया, सेट करने के बाद बस सब इंतज़ार में थे कि मैं वीडियो ख़त्म करूं को, और साथ ही हम कहे चलो जी रोटी खुल गई जे। तो इतनी भूख लगी हुई थी, जैसे हमने कहा रोटी खुल गई है, लोगों का मुझे पता नहीं, मैं अपने बच्चे भूल गई, मैं पकड़ के चांपे खा रही हूँ, बन कबाब खा रही हूँ। बहुत मज़ा आया मुझे खाना खाने को। मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा कर रही थी माशाअल्लाह से, कि सही भूख में पता चलता है कि अल्लाह ताला की नेमतें कितनी ज़्यादा हैं, और अल्लाह ताला हमें कितनी ज़्यादा नेमतों से नवाजता है, और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है, हम उसका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। ये तो तब पता चलता है जब आप बहुत भूख लगी हो और आपके पास खाना ना हो, या खाना है भी है तो आप नहीं किसी वजह से खा पा रहे। और इतनी भूख लगने के बाद जब आपके पेट में कोई चीज़ जाती है हलाल चीज़, तो वो किस कदर लज्जत देती है, इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे इस वक्त हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगी हुई थी। अलग बात है मैं भूख की कच्ची भी हूँ, लेकिन ओ माय गॉड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह से। जब कोरोना भी था ना, तो कोरोना में आपको पता है कि ज़ुबान का ना टेस्ट जो है लज्जत चली जाती है, हमें पता नहीं चलता ज़ुबान में हम क्या खा रही हैं, पानी पी रही हैं या कोई जायकेदार चीज़ खा रही हैं। और जैसे कुछ ना 12 से 13 दिनों के बाद जैसे जायका आया था ना, आप यकीन जाने मेरे घर में 1-2 बंदे थे जिनको कोरोना के बाद जब उनको टेस्ट आना शुरू हुआ था ना, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि वाकई अल्लाह ताला ने एक एक जो चीज़ बनाई है, हमारी जो सेंसेस बनाए हैं और जितनी भी नेमतें बनाई हैं, हम वाकई में हकीकत है हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, जबकि हमें चलते फिरते शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो में बात करते करते शुक्र अदा करूँ, इसे बहाने आप भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है हर उस नेमत का जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है, हमारी आँखों का, हमारे हाथों का, हमारे पाँव का, कि हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, छू सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है। ये जगह इतनी मज़ेदार थी, आपको नज़र आ रही है, पूरी हैपनिंग वाली थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं ना पानी के साथ लगे हुए, क्योंकि बच्चों का पानी के साथ घूमने फिरने का, खेलने का बहुत मज़ा आता है। और इधर झूले भी थे, पानी भी था, बड़े भी छोटे भी हर कोई ना अपने एंजॉय करे, तो ये हमने गंद गुंद डाल दिया था
मतलब पैन केक कप नज़र आ रही है, बच्चे तो पैन केक पे पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत आसरा किया हुआ था, हमने तो खाना खाना था। इन बिटवीन हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी और मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी को कुछ ना कुछ उसका शीशे का कोई प्रॉब्लम हुई थी, मुझे याद आ रहा है। तो वो और जो मेन स्टोरी थी मेरी देवरानी की, अभी मैं वो बताती चलती हूँ क्योंकि यही टाइम था, मैं तो पागल हो गई क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ, पार्क में, इस तरह के किसी भी जगह पे जाती हूँ, मेरे बच्चे कम पागल होते हैं, मैं पहले पागल हो जाती हूँ। मैं इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, ये झूला ले रही हूँ, वो खेल रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ। अब तो वैसे वीडियो भी एक नया खिलौना मुझे मिल गया हुआ है। तो पीछे जब मैं गई दोबारा कुछ खाने पीने के लिए या कुछ करने के लिए, अल्लाह जाने क्या करने गई, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते वो चले गई है देवरानी मेरी ना, और मेरी नादर जो थी वो घर चले गई हैं। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों चले गई, इतनी मैंने से बनाया तो हमने सही तरह से कुछ खाया भी नहीं, अभी तो आई हैं, मुझे लगता है कि हार्डली 30 मिनट भी नहीं हुए होंगे ना। तो वो कहती उसको बहुत ज़बरदस्त किस्म के कोई हाथ में कोई ना, इस वाली जगह पे वो बैठी थी, ये जो लकड़ी वाली जगह नज़र आ रही है, उसने पता नहीं किधर हाथ रखा, क्या चीज़ को पिके की, कुछ कोई कट गई, ये क्या उसको हुआ समझ ही नहीं आई। कहती मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी सांप ने ढस लिया। कहते मैं गौर से देखूं आसपास कि कहीं कोई सांप तो नहीं है या कुछ इस तरह से, या फिर ना अपने जख्म को देखूं कोई 2 डंडे तो नहीं है, या क्या चक्कर है, जो सांप के जो 2 तिनके नज़र आते हैं वो तो नहीं है। कहती मुझे समझ ना आए क्या है क्या नहीं। वो इस वक्त एक हाथ लेके बैठी हुई है अपना, तो थोड़ी देर के बाद वो चले गई थी। और इतना बुरा उसकी बेचारी को हो रहा था, वो चीखें मार रही थी, कहती मेरी बर्दाश्त से बाहर है। हालांकि वो बहुत बर्दाश्त करने वाली है माशाल्लाह से, लेकिन वो उसके बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो रहा था। वो रोने लगी थी लिटरली, आंसुओं के साथ चीखें मार मार के कि उसके साथ हो क्या रहा है। और मुझे इतना डर लगा क्योंकि मैं तो वैसे बड़ी ड्रोकली हूँ, मैं तो वैसे ही कीड़े मकोड़े मक्खर शक्कर हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो ना मैं और डर गई, मैं कि देखा तुम लोग मेरा मजाक बनाए, सब लोग मेरे घर वाले ना मेरे से बहुत ज़्यादा तंग हैं कि मैं हर एक चीज़ से चीखें मार के डरती हूँ। मक्खर आ गया, ये हो गया, वो हो गया। मक्खर लाइक पाकिस्तानी जो येलो बी होते हैं ना, तंबूड़ी या बीर, वो यहाँ की बहुत एडवांस किस्म की, बहुत ही हाई लेवल की कोई चीज़ है। इन मेरी फैमिली ने उसका नाम रखा हुआ है मक्खर, मुझे नहीं पता यहाँ पे सही वाला नाम क्या होगा, फ्रेंच में तो उसको कहती हैं बग उ अबई। ओके, तो ना मुझे इतना डर लगा, मुझे और डर लगने लग गया ना उसके साथ ना, अबे के साथ। मैं क्यों लला पता नहीं कितनी की खतरनाक है, कितनी की दर्द हो रही होगी, क्योंकि मैं अगले बंदे को जब दर्द होती है मुझे लगता है कि सब मुझे ही हो रहा है। तो मैं इसको इमेजिन करना चाह रही थी कि पता नहीं कितनी की दर्द है। वो बेचारी सब कुछ छोड़ छाड़ के, उसके साथ ऐसे कुछ खाया भी नहीं गया, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तो ना हॉस्पिटल चलेगी, लाइक हॉस्पिटल चलेगी एमरजेंसी में। कहती मेरी बर्दाश्त से बाहर है मुझसे, वो बेचारी रोई ऐसे, रोज़ को समझ नहीं वो कर क्या रही है। बहुत बुरा हाल हो गया था। मैं और मेरी नंद बेचारे बच्चों के लिए बैठे रहे क्योंकि हमारे बच्चे तो हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने और पानी में खेलना है, हमने और पानी में खेलना है। इसके अलावा भी अभी देखा होगा अभी तक हमारा केक कटा नहीं। और जब सब लोग चले गए, मगरिब होने वाली थी, तकरीबन 8:30 हो चुके थे, तो हमें घर जाने में भी टाइम लगना था, तो बच्चों को नहलाने शहलाने में भी टाइम था, इसलिए मुझे ये था कि हम जल्दी से निकले। और ये टाइम आ गया केक काटने का, और इस वक्त इतनी हड़बड़ी पड़ गई, मेरी नंद केक काट रही थी और मैं चीज़ें समेट रही थी कि बस किसी तरह से बस घर को चले को। मैं बच्चे भी समेट रही थी, एक बच्चे को पकड़ो माशाल्लाह से दूसरा बच्चा भाग रहा था, दूसरे को पता तो तीसरा बच्चा माशाल्लाह से भाग रहा था। इसलिए मैं केक की सही तरह से वीडियो नहीं बना सकी कि अंदर उसने किस तरह से बनाया था, लेकिन बहुत मज़ेदार किस्म का था। और ये अलग बात है कि जब मैंने इतना टका के माशाल्लाह से खा लिया था कि केक खाने की इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं रही। तो एक गाड़ी जो मेरी नंद ले गई थी, दूसरी वाली जो मेरी देवरानी को हॉस्पिटल ले गई थी, दूसरी गाड़ी में जो अपनी फैमिली के साथ मेरी नंद माशाल्लाह से बड़ी वाली नंद आई थी, हम उसी की गाड़ी में ठोस ठास के चीज़ें और ऐसे घुस घुसा के ना तो अपने आप को पूरा किया, क्योंकि घर जाना था। घर जाके अलग से काम हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और अगर तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो पहले सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा, और बेचारी मेरी देवरानी के हक़ में दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हम सब बहन भाइयों को, औलाद को, माँ बाप को अल्लाह ताला अपने ख़ास हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हम सबको बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।